I joined Akash in 9th standard. So I joined early. I gave Anthe in 8th standard. Pretty much a game-changing moment for me. Now I'm competing all across India. Hello dear students, I Akash Mehta at Akash Byju's welcome you all in this session where we would be discussing what kind of forces does a current carrying wire experience when placed in a magnetic field. Before that students, I would like to introduce you to an opportunity named Anthe to be a part of Akash Byju's classroom programs with securing up to 100% scholarship. That means all your course fee would be fully paid, fully taken care of by Akash Byju's. In addition to that, there is a massive opportunity with you to be on all paid visit to NASA if you be among the toppers of the exam. Dear students, this exam is free to enroll and all your friends from 7 to 12 pass classes can enroll for this exam online and can appear in online and offline mode in the slots as per your own convenience. For your 12 past friends, there is also an opportunity to write an exam sitting at home of 35 minutes duration only and secure 50% scholarship in Akash Byju's classroom programs. Dear students, here are the faces which are not just the faces of success, they are also the faces of hard work. Dear students, as they say, there cannot be any marvelous piece of work from a lazy artist, right? So we don't have any other choice than working hard for securing a great rank in our NEET preparation. So for that, I here at Akash Byju's along with a very dedicated team, right, a marvelous dedicated team, we would ensure definitely our support for you for all your hard work that you will be securing a great rank in your NEET exam, and your faces, your shining faces would be the success story of tomorrow and would be motivating for the aspirants of NEET that would be there after you. So students, please like, share and comment on the channel. Do subscribe the channel so that you will get to know the further notifications and as when they appear in the channel. So let us begin the topic of today at hand. The topic is what kind of magnetic force does a current carrying wire experience, right? So first of all, इस सेशन में हम एक वायर के साथ डील करेंगे which would be placed in a uniform magnetic field, and later on we would see some example where that wire would be experiencing a force due to the non-uniform magnetic field also. So let us start our journey. First of all, magnetic force on a current carrying wire when placed in a uniform magnetic field. So it was seen that when a current carrying wire, जब एक current carrying wire को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट वाज सीन कि दैट इट गेट्स डेविएटेड एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. तो डेफिनेटली दिमाग में ये आएगा कि अगर ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो ये फोर्स कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स एंड व्हाट इज द रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो व्हेनेवर अ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, you can see that electrons start moving in the circuit from the end of lower potential to higher potential in the circuit. But it was known very later on that these are the electrons which are moving in the circuit. Electrons पहले तो ये पता ही नहीं था कि electrons की वजह से ये current flow कर रहा होगा. Electrons की discovery तो काफी later on हुई. तो by convention it was taken कि positive charges ही शायद flow करते होंगे circuit में, और पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट की डायरेक्शन बाय कन्वेंशन इट वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड को फ्लो करेंगे तो करंट वुड बी शोन एज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट. ओके, तो अब इस पूरे सर्किट में से हम एक सेक्शन को कंसिडर करते हैं. लेट अस फोकस ऑन दैट सेक्शन फर्स्ट. अब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में electrons would be flowing from one side to other, while the conventional current would be flowing in the opposite direction. It would be shown flowing in the opposite direction. And we know in current electricity, we have the value of current flowing in a circuit given by I equal to VDE and A, where VD is the drift velocity of the electrons, E is the charge on one electron,
N is the number density, that is the number of free electrons available per unit volume, and A is the cross-section area of the wire segment. Now, when this segment of wire, it is placed in a uniform magnetic field for the matter, we are actually dealing with इलेक्ट्रॉन्स. हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कर रहे हैं जो उस मैग्नेटिक फील्ड में उस वायर के थ्रू फ्लो हो रहे होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस वायर सेगमेंट में. अब जब इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फॉर दैट मैटर अ चार्ज, व्हेन अ चार्ज मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी, हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी कि एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो मूव करेगा देन इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट, गिवन बाय द एक्सप्रेशन क्यू वी क्रॉस बी. अब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, although through wire, but they are flowing through the wire in a magnetic field. मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लगने वाली है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी वो फर्दर कौन एक्सपीरियंस करेगा? दैट वुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर इटसेल्फ. श्योर. तो अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उस जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस वायर सेगमेंट पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, राइट. Now, we know that a charge Q experiences a force QV cross B when it is made to move with the velocity vector V in a magnetic field with magnetic field vector B. अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? It is -E. और इलेक्ट्रॉन कितनी फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में? -EV क्रॉस B. और इसका मैग्नीट्यूड फिर कितना होगा? It would be EVB sin theta, where theta is nothing but the angle between velocity vector of the electron and magnetic field in the region. अब ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करिए, बट ऐसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो इस वायर में मूव कर रहे हैं. सो फॉर नोइंग द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट वायर सेगमेंट, हमें करना क्या है? हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स को वेक्टोरियली और सिंपली ऐड करना है यहाँ पे. अब एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी मैग्नीट्यूड फोर्स एक्सपीरियंस करी? EVT sin थीटा. हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं DL एलिमेंट में? नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, दैट इज NaDl. तो वो जो एक छोटी सी एलिमेंट है DL लेंथ की ऑन द वायर सेगमेंट, वो छोटी सी एलिमेंट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? दैट वुड बी गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वायर सेगमेंट एंड द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन चार्ज इलेक्ट्रॉन. तो टोटल फोर्स अब जो उस वायर सेगमेंट पे आएगी दैट वुड बी द इंटीग्रल. हमें एलिमेंट पे फोर्स का पता चला, पूरे वायर सेगमेंट पे कितनी फोर्स लगी? दैट वुड बी द इंटीग्रल सम ऑफ ऑल दो स्मॉल फोर्सेस ऑन दो स्मॉल वायर एलिमेंट्स. तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगी नेट वायर सेगमेंट पे, अगर वायर सेगमेंट एक स्ट्रेट वायर सेगमेंट है, तो दैट वुड बी सिंपली नथिंग बट VD ENAB, AB being the length of the wire segment into sin theta, AB, where A is the area of cross section of the wire segment, B is the magnetic field in the region, sin theta is the angle between the velocity, it was the angle between the velocity and the magnetic field, but in this case that same angle would be there between the wire segment and the magnetic field, or L, which is simply the length of that segment. अब अगर मैं इसमें से VDENA को क्लब कर लूं तो दैट वुड बी सिंपली करंट फ्लोइंग इन द सेगमेंट. सो IBL sin theta would be the force experienced by that segment, right? अब हमें ये तो पता चल गया कि force experienced by that segment is IBL sin theta, but force being a vector quantity, it has to has a direction also. अब ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स का डायरेक्शन कैसे देते हैं? दैट कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल मीन्स इफ यू स्ट्रेच योर thumb of right hand to the direction of the velocity of one charged particle, assuming it to be positive, and stretch your fingers of the right hand in the direction of the magnetic field, the direction of the palm, right? It would give the direction of the force experienced by the charged particle. और राइट हैंड पाम रूल से और राइट हैंड स्क्रू रूल से हम ये बता सकते हैं कि what would be the force experienced by that segment when placed in a magnetic field. So हमें ये पता है कि F एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वुड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बी IB क्रॉस L sin थीटा, IB क्रॉस L, और वुड इट बी IL क्रॉस B?
So the right answer there would be it is I L cross B. The force experienced by a wire segment placed in a magnetic field is given by I L vector cross B vector, where L vector is nothing but the vector along the length of the wire segment in direction of the current, and magnetic field vector B is nothing but the magnetic field vector available in the space where that wire segment is placed, and I is the magnitude of the current flowing through that wire segment. So do remember IL cross B would give us the magnetic field force experienced by a wire segment kept in a magnetic field. Sure? चलिए अब थोड़ा और इसका केसेस को स्टडी कर लेते हैं. Now we are done with this formula that force experienced by a wire segment is IL cross B, and we have already dealt with that L vector is the vector in the direction of current I, right? तो अब थोड़ा स्पेशल केसेस के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं इसके. So here we have three cases, case 1, case 2 and case 3. अगर आप केस 1, केस 2 और केस 3 में देखेंगे तो करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सेगमेंट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो आई कैन से कि एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में टोटल एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, दैट इज 0. While in the case 2, the angle between magnetic field and the wire segment vector is 180 degree. And in the third case, the angle between L vector and the magnetic field is 90 degree. So in case 1, theta being 0, the force experienced would be 0 as sine 0 is equal to 0. In the second case, the angle between the vectors being 180 degree, the cross product would result into 0. So force experienced by the wire would be 0. And in the third case, the force vector would be at its maximum magnitude and that is equal to ILB. So in case 1 and case 2, if the wire is placed along the direction of magnetic field, इसको याद रखिएगा आप कि अगर वायर ऐसे प्लेस करी गई है कि उसमें फ्लो होने वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, then the net force experienced by that wire segment would be equal to 0. और ILB जैसे हमने ऑलरेडी देखा, ILB would be the maximum force that a wire segment of length L carrying current I can be experienced when it is placed in a magnetic field B, right? अब हो सकता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर सेगमेंट हमेशा ना हो, बट अगर एक आर्बिट्रेरी शेप्ड करंट कैरिंग वायर है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और हमसे ये पूछा जाए AC हियर हमसे ये पूछा जाए कि इस AC आर्बिट्रेरी शेप वायर पे magnetic field force कितनी लग रही है when it is placed in uniform magnetic field. For that purpose of calculation, we can simply replace that arbitrarily shaped wire segment with a straight wire segment from A to C carrying current I that was earlier being carried by the arbitrarily shaped wire. और जितना फोर्स इस स्ट्रेट वायर पे AC एक स्ट्रेट वायर है, जो जितना फोर्स वो स्ट्रेट वायर एक्सपीरियंस कर रही होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उतना ही फोर्स ये आर्बिट्रेरीली शेप्ड कंडक्टर भी महसूस करेगा. सो विद दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर, राइट? और फॉर्मूला अगेन वही ILB साइन थीटा और IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. अब अगर यहाँ पे एक शेप्ड स्ट्रेट कंडक्टर की जगह पे एक लूप है मैग्नेटिक फील्ड में इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ वी हैव अ क्लोज्ड लूप, तो कैन आई से कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ही शायद इसका एंड पॉइंट भी है इस लूप का. तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो लेंथ वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया. तो अगर लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया तो फोर्स एक्सपीरियंस भी 0 होगी. तो यहां से हमें एक और चीज अभी याद रखनी है कि व्हेनेवर अ क्लोज्ड लूप कंडक्टर वायर closed loop carrying current is placed in a uniform magnetic field, it would experience a net zero force. उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स पे फोर्स लग सकता है, बट उन छोटी छोटी फोर्सेस का वेक्टर सम would result into a zero magnetic force experienced by the wire loop. Okay? So net force would be 0 on a closed loop in a uniform magnetic field. So अगर यहाँ पे एक सर्कुलर लूप की बात करूं जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इस लूप में अगर हम छोटे छोटे सेगमेंट्स पे देखें, अगेन यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल, छोटे छोटे सेगमेंट्स पे द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स.
जैसे यहाँ पे सेगमेंट पे द फोर्स वुड बी रेडियली आउटवर्ड, हेयर इन दिस सेगमेंट द फोर्स वुड बी रेडियली आउटवर्ड, हेयर टू एंड हेयर. नाउ अगर मैं इन फोर्सेस के पेयर्स बना लूं, ऑपोजिट डायरेक्टेड फोर्सेस के पेयर बना लूं, तो पूरी वायर पे, पूरी लूप पे हमें ऐसे बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे और इन सभी पेयर्स का नेट सम होगा 0. सो अगेन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस लूप वुड बी 0. यहाँ पे भी सिमिलरली एज दिस loop is a closed loop, maybe in a rectangular shape, but being a closed loop in a uniform magnetic field, this closed loop would also experience a net 0 force. Okay? So, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में पूछा गया है that we need to find the force on the wire kept here in as shown in the diagram. अब इस वायर सेगमेंट में वायर सेगमेंट की लेंथ दी गई है L और वायर सेगमेंट में करंट फ्लो हो रहा है I, और इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स आवर फेस. अब इस डायग्राम को देखने पे शायद ऐसा तुम्हें लग सके कि मैग्नेटिक फील्ड B में और लेंथ ऑफ द वायर वेक्टर, इस वेक्टर में एंगल लग सकता है कि शायद 30 डिग्री का हो, लेकिन यहां पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विच इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, both are perpendicular to each other. So ILB sin theta में थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री. Once theta is 90 degree, the magnitude of the force is going to be ILB. Okay? Or again by using the right hand palm rule, directing your thumb of right hand towards the direction of the current in the wire and stretching the fingers of the right hand in the direction of the magnetic field, you will be able to see that the magnetic field force on the wire would be directed in this direction. Okay? So the correct answer for the question from the given options, that is ILB sin 30 degree, ILB cos 30 degree, 0 or ILB, the correct answer for the force experienced by the wire segment in the magnetic field would be ILB. Sure? Now moving on to our next question. This question says that a loop PQRS carrying the current is placed in a uniform magnetic field. और हमें इस वायर लूप के PS, SR और RQ सेगमेंट्स पे फोर्सेस की वैल्यू दी गई है. Sure? And it was asked in the question that what is the force that is being experienced by the segment QP. Right? अब हमें एक चीज का पता है कि अगर एक क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ ही वो सेगमेंट है अब यहाँ पे जिसकी फोर्स का हमें पता नहीं है, जिसके ऊपर लगने वाली फोर्स का हमें पता नहीं है. तो इसका मतलब अगर उसके ऊपर फोर्स लेटर से F लग रही है, F अमाउंट फोर्स इज द फोर्स दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग, तो वो फोर्स ऐसी फोर्स होनी चाहिए कि लूप पे लगने वाली बाकी सारी फोर्सेस को वो बैलेंस करे, सो दैट द नेट फोर्स ऑन द लूप बिकम्स 0. अब बाकी सारी फोर्सेस का अगर मैं वेक्टर सम करूं तो देयर वेक्टर सम वुड कम आउट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 माइनस F2 होल स्क्वायर प्लस here it would be F3 plus F2 whole square. So this is the net force of the three forces F1, F2 and F3. और इन तीनों फोर्सेस के नेट के मैग्नीट्यूड के बराबर बट डायरेक्शन में ऑपोजिट थर्ड फोर्स होनी चाहिए, फोर्थ फोर्स होनी चाहिए F4. तो F4 का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी बाकी तीनों फोर्सेस के नेट के, बट हमें मैग्नीट्यूड ही पूछा गया था फोर्थ फोर्स का. तो द फोर्स that would be experienced by the PQ segment would be given by the formula under root F1 minus F3 whole square plus F2 square. So the correct option from the given options would be option D here, right? So now moving on to other example where a wire is placed in a non-uniform magnetic field. तो हम एक एग्जाम्पल के साथ अभी डील करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म है. सो हम एक वायर के साथ डील कर रहे हैं. ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, ब्राउन कलर्ड दिस वायर इज कैरिंग द करंट I1, और ये वायर अपने सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी. अब इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हमने एक और वायर रख दी, द ब्लू कलर्ड वन कैरिंग द करंट I2. दिस इज अ वायर सेगमेंट फ्रॉम A to B ऑफ लेंथ L. अब ये जो वायर है ब्लू कलर्ड,
इस वायर पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से अगर मैं ए पॉइंट पे बात करूं तो ए पॉइंट वुड बी एक्सपीरियंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन ए। बट जो उसका बी एंड है फाइनाइट वायर का, वो बी एंड कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है? दैट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन ए प्लस एल, बिकॉज दैट पॉइंट बी वुड बी एट द टोटल डिस्टेंस ऑफ a plus l from the infinite wire segment। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं a से b की तरफ जाऊंगा, a से b की तरफ जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला है ऑन द ब्लू कलर्ड वायर ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग द करंट I1। तो एक तरह से जो ब्लू कलर्ड फाइनाइट वायर है वो एक ऐसे रीजन में रखी गई है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, एंड इट कैन बी सेड दैट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब हमारी स्टेटमेंट ये है पर्पस की कि हमें इस फाइनाइट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ x, इनफाइनाइट लेंथ वायर से x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं dx लेंथ की, और इस एलिमेंट पे लेट अस सपोज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू df। और ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे इस ब्लू कलर्ड फाइनाइट वायर पे, बहुत सारे छोटे छोटे dx लेंथ के सेगमेंट होंगे जो ऐसे बहुत सारी एक्सपीरियंस करेंगे फोर्सेस छोटी छोटी df1 df2 एंड सो ऑन अप टू dfn। और इन सभी फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम ले लें देन वी वुड बी एबल टू गेट द टोटल फोर्स दैट द ब्लू कलर्ड फाइनाइट वायर वुड बी एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। श्योर। नाउ अब अगर आप देखोगे तो फाइनाइट वायर में करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इनफाइनाइट वायर की वजह से किस तरफ को है, इनटू द प्लेन ऑफ द स्प्रिंग। और बाय अगेन यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल whichever you are comfortable with, उसकी वजह से the magnetic force on the wire would be directed in downward direction। और इन सभी छोटे छोटे सेगमेंट्स पे अगर मैं एक्सवेरी करूं तो छोटे छोटे dx के जो सेगमेंट बनेंगे इस वायर पे, उन सभी पे मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होने वाली है दैट वुड बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब हम उनको स्केलर की तरह ही ऐड कर पाएंगे बिकॉज ऑल दोज वेक्टर्स विल बी डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। Now, the force that the small element dx would experience is equal to I2b dx sin 90 degree. Sin 90 degree, why? Because the current in the finite wire would be perpendicular to the magnetic field there. तो उसकी वजह से sin 90 है वहां पे। और b क्या है? b is nothing but the magnetic field that dx part would be experiencing because of the infinite wire segment. तो अब ये रहा हमारा वो छोटा सा फोर्स that dx element would be experiencing। मैग्नेटिक फील्ड के साथ dx एलिमेंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा होगा ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन x। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एक्सप्रेशन रहा उस फोर्स का जो वो dx एलिमेंट एक्सपीरियंस करेगी। और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इन इफेक्टिवली आई वुड बी एडिंग अप द फोर्सेस लाइक अ स्केलर। तो इसको इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं देन आई वुड बी एबल टू गेट द नेट फोर्स दैट द फाइनाइट वायर वुड बी एक्सपीरियंसिंग, राइट। अब यहां पे इंटीग्रेशन में किस चीज की इंटीग्रेशन होगी, इट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। और x का वेरिएशन, x की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, इट वुड बी फ्रॉम a टू a प्लस l, राइट। और इन लिमिट्स के साथ the value of the magnetic force experienced by the finite wire would be given by mu naught I1 I2 upon 2 pi natural log of a plus l minus natural log of a। Sure? और इसको हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, natural log of a plus l divided by a by using the properties of logarithm। So now next topic, what is the force that two parallel current carrying wires would experience due to one another। तो अगर यहाँ पे दो इनफाइनाइट वायर है हमारे केस में, लेट अस से द इनफाइनाइट वायर 1 एंड द इनफाइनाइट वायर 2, तो वायर 1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके सराउंडिंग स्पेस में विच वुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर 2 केप्ट क्लोज टू द वायर 1। अब ये जो वायर 2 है ये कितना, इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा वायर 1 की वजह से, राइट। That would be let us say equal to B1। और B1 की वैल्यू कितनी है, B1 is nothing but the magnetic field produced in the region of wire 2 by the wire 1। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस हो रहा है B1, it is mu naught upon 4 pi 2i1 by d, that is the magnetic field that is there
on wire 2 due to wire 1. तो वायर 2 कितना फोर्स महसूस कर रही होगी? वायर 2 इनफाइनाइटली लेंथ की है, तो हम उसके एक पार्ट की बात करेंगे. तो वायर 2 का एक पार्ट दैट इज ऑफ लेंथ L, वो कितना फोर्स महसूस कर रहा होगा? It would be experiencing a force equal to I2 B1L, where L is the length of that part under consideration. So F21 by placing the value of B1 would simply be mu naught I1 I2 upon 2 pi D, where D is the distance between two wires, into L, where L is the length of that segment that we are studying. ऐसी ही फोर्स वायर 1 भी एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू द वायर 2, राइट? So I can say that this force was about the length L of the wire. So what would be the force per unit length of the wire? It would be mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by D. Nothing. We have simply divided both sides by the length L. So force experienced by 1 unit length of the straight infinite wire kept close to another straight infinite wire parallel to that. So that force experienced per unit length would be mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by D. Sure? Or by Newton's third law, I can simply say कि अगर सेकंड वायर फर्स्ट वायर की वजह से इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है पर यूनिट लेंथ, तो फर्स्ट वायर भी सेकंड वायर की वजह से इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी. Sure? So if F21 was mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by D into L, the F12, which is nothing but the force experienced by 1 due to 2, would be also same, and that also be same for the force experienced per unit length. Okay? तो अब अगर दोनों वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही हैं, पैरेलल वायर्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हैं, तो एक वायर की वजह से दूसरी वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड बी इनटू द प्लेन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. और दूसरी वायर जो है वो करंट लेके जा रही है इस डायरेक्शन में, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी द सेकंड वायर F21 फोर्स जो सेकंड वायर एक्सपीरियंस करेगी दैट वुड बी टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, while at the same time the force that would be experienced by the first wire, that F12, it would be directed towards the second wire. तो यहां से एक चीज हमें पता चली कि दो पैरेलल वायर्स इनफाइनाइट लेंथ की, when they carry the current I1 I2 in the same direction, then they would experience a force which would be attractive in nature. Same direction में current flow हो रहा होगा पैरेलल वायर्स में, then they would experience a force which would be attractive in nature. But अगर opposite direction में यही current flow रहा होगा, here you can see the current is flowing in the two wires in opposite direction. अगर opposite direction में current flow हो रहा होगा parallel wires में, then the force experienced would be of the same magnitude that was earlier in the case, but that force would be repulsive. Sure? So the force per unit length expression would be same, but that would be repulsive in nature. Okay. So again, Newton's third law still holds good, that the force by which the wire 1 would be repulsing the wire 2, with the same force the wire 2 would be pushing away the wire 1. अब इस एक्सप्रेशन से ही, ये जो एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी देखा फोर्स का, इस एक्सप्रेशन से ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकल के आती है करंट की, कि अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी. अगर मैं दो वायर्स में करंट ऐसा फ्लो करूं दैट I1 एंड I2 बोथ आर इक्वल टू 1 एम्पियर, एंड दीज टू वायर्स दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस d of 1 meter from each other, then the force per unit length that these wires they are going to experience would be equal to 2 into 10 to the minus 7 Newton per meter. That is the force per unit length. And this is the definition used for defining the SI unit of current, that is 1 ampere. So what is 1 ampere? 1 ampere is that current which when flowed in two parallel infinite wires kept at a distance of 1 meter apart from each other in vacuum, it produces a force of attraction between the two wires per unit length of magnitude 2 into 10 to the minus 7 Newton per meter. Sure? Now, after that, we would be dealing with few examples now. That examples, first example is, we need to find the tension that is produced in the loop that carries a current I in the ring when placed in a uniform magnetic field.
तो एक मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग रिंग को रखा गया जो कि करंट आई कैरी कर रही है, तो उस करंट कैरिंग रिंग में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी एक्स्ट्रा ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन किसी एलिमेंट पे इस तरफ को अगर है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड। अगेन बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वुड बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वुड बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, हर सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वुड बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिंग इज एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फोर्स विच इज ट्राइंग टू stretch this ring outwards. Stretching means this wire ring would be under tension, और हमें उस ही टेंशन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो सपोज उस रिंग पे मैंने एक छोटी सी एलिमेंट कंसिडर कर ली जो कि सेंटर पे एंगल 2 थीटा सबटेंड कर रही है, हाफ एंगल d थीटा। सो 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रही है वो रिंग, तो उस रिंग की लेंथ कितनी हो गई? इट वुड बी इक्वल टू r इंटू 2d थीटा। तो उस लेंथ का वायर सेगमेंट उसको मैं एक स्ट्रेट सेगमेंट की तरह कंसिडर कर सकता हूं बिकॉज दोस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए हमने कर्व सा लग रहा है, बट इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल दैट कर्व पार्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट वायर सेगमेंट। अब वो r इंटू 2 डी थीटा का जो सेगमेंट है उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट वुड बी I इंटू r2 डी थीटा इंटू p विच इज नथिंग बट ILP। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स वुड बी बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन द रिंग। टेंशन के जो कंपोनेंट है दैट वुड बी बैलेंसिंग दिस फोर्स, दे आर नथिंग बट 2 components on the ends of that segment directed downwards and having the value t sin d theta. So there are 2. So the net tension component balancing the magnetic field force would be 2t sin d theta. Now d theta being a small angle, we can simply write sin d theta as nothing but d theta. और दोनों साइड पे इस इक्वेशन में वी कैन कैंसल आउट डी थीटा, तो बी आई आर वुड गेट इक्वल टू टी, और आई कैन से दैट वैल्यू ऑफ टेंशन इज नथिंग बट आई आर बी। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन डी that is IRB would be the tension in the current carrying ring when placed in a magnetic field. Right? Now moving on to our next example. This example says that a square loop ABCD carrying the current I, it is placed near and coplanar with the long straight conductor XY. तो XY एक straight long wire है, उस wire के plane में हमने एक ABCD square loop रख दिया जो कि current carry कर रही है small I, और जो straight wire है, long straight wire, it is carrying a current given by capital I. तो we need to know what is the net force on the loop due to the straight long wire. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, we know the magnetic field produced by the straight long wire in the region surrounding it is given by mu naught I by 2 pi r. जो r क्या है वहाँ पे? r is the distance of the point where we need to know the magnetic field from the infinite straight wire. अब ये जो लूप है ABCD, इसको मैं 4 सेगमेंट्स में तोड़ के देखता हूं, दैट इज AB, BC, CD एंड DA. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A towards B, B towards C, C towards D and D towards A. B, C और DA segments, again B, C and DA segments would be experiencing force due to the magnetic field of straight long wire, and those magnetic field vectors due to the long wire would be directed into the region here. और उन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की वजह से जो BC सेगमेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा दैट वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, DA सेक्शन जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स दैट वुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ऑल्दो BC एंड DA सेगमेंट्स दे आर केप्ट इन अ रीजन विद नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. वाई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि B से C को जब हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, but still they would be overall, BC and DA, they would be overall experiencing a net force F which would be same in magnitude
मतलब BC और DA सेगमेंट पे जो फोर्स लग रही होगी दैट वुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड टू ईच अदर बट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि BC सेगमेंट और DA सेगमेंट पे लगने वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो लूप के ऊपर अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है देन द फोर्स ऑफ BC एंड DA दे वोंट प्ले एनी नेट इफेक्टिव रोल एज दे वुड गेट कैंसल्ड आउट विद ईच अदर। तो हमारे पास नेट फोर्स ऑन द लूप निकालने के लिए कौन से सेगमेंट रह गए? सिर्फ दो सेगमेंट्स वुड बी AB एंड CD। अब अगर मैं AB सेगमेंट की बात करूं तो AB सेगमेंट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विद द वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L बाय 2 और सिंपली म्यू नॉट I बाय पाई L। तो AB सेगमेंट कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? दैट वुड बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्क्वायर लूप स्मॉल I into mu naught I by pi L, that is the magnetic field on that part AB times the length of that part. And what is the length of that part? That length is nothing but capital L. और CD segment की अगर मैं बात करूं तो CD segment would be experiencing a field, magnetic field with the magnitude mu naught I upon 2 pi to 3L by 2. Why 3L by 2? Because CD segment would be at a distance of 3L by 2 from the infinite wire. तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा CD segment that would be nothing but mu naught I upon 3 pi L। और जो करंट फ्लो हो रहा है उसी सेगमेंट में दैट इज स्मॉल I और जो लेंथ है CD सेगमेंट की दैट इज अगेन L। अब अगर मैं AB सेगमेंट को देखूं तो AB सेगमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इन डायरेक्शन विद द करंट फ्लोइंग इन द पैरेलल वायर। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी टुवर्ड्स द वायर। बट CD सेगमेंट पे करंट बीइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, CD सेक्शन वुड बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन और अ रिपल्सिव फोर्स। तो इसका मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं यहाँ पे ऑन द सेगमेंट AB एंड CD दे वुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करनी पड़ेगी। तो F नेट वुड कम आउट इक्वल टू, यहाँ पे L तो कैंसिल हो जाएंगे, तो F नेट वुड कम आउट इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन पाई इंटू 1 माइनस 1 बाय 3 और इक्वल टू म्यू नॉट I into 2 upon 3 pi, right? So that would be the force that would be experienced by this square loop when placed in plane of a long straight wire carrying current I. So with that, the answer to the question would be option A. And this brings us to the end of the session. Thank you.